نبی جگہ نہیں چھوڑی. رب نے یہ اعلان کیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خوف مت کھاؤ، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم ہی کامیاب ہو اور کامیاب کرائے جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. سبحان اللہ. اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہو، یہاں پر بھی وہاں پر بھی اور میدان محشر پر بھی. یہاں کامیاب ہو، نماز پڑھتے ہو، لوگ تجھے دنیا والے نمازی کہہ کے پکارتے ہیں. روزہ رکھتے ہو، دنیا تجھے صائم کہہ کے پکارتے ہیں، روزدار کہہ کے پکارتے ہیں. حج کرتے ہو، تمہیں لوگ حاجی کہہ کے پکارتے ہیں. علم حاصل کرتے ہو، لوگ تجھے عالم کہہ کے پکارتے ہیں. دنیا میں کوئی خیرات و صدقات کرتے ہو، لوگ تجھے سخی کہہ کے پکارتے ہیں. لوگوں تم دنیا میں رب کی رضا جوئی کے لیے ادنا سا کوئی عمل کرتے ہو. دنیا میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے زبانی تجھے عطا کر دیتا ہے تو دنیا میں تجھے الگ الگ نام سے پکارے جاتے ہیں. جب مرو گے، علم حاصل کر کے مرو گے تو تم علم کے حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑا تھوڑا علم سکھائے، وہ علم دنیا میں جاری و ساری ہے. تم مر گئے لیکن تمہارا عمل نہیں مرا، تمہارا عمل جاری ہے. اس نے کسی اور کو سکھایا، یہ عمل تمہارا مرا نہیں ہے. تم جگہ بدل دیے ہو، تمہارے عمل جاری و ساری ہے. تم نماز پڑھتے تھے، تم کو لوگ نمازی کہتے تھے، تم نے کسی اور کو نماز سکھایا، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کسی اور کو نماز سکھایا، تم مر گئے، تم انتقال کر گئے. تمہارا عمل مرا نہیں، انتقال نہیں کیا ہے، وہ زندہ ہے. یہ سجدہ اور یہ صدقات، یہ عمل صالح نے کیا، تمہیں قبر میں ملتی رہے گی اور اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک کہ تمہارے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا نہ دیا جائے. سبحان اللہ. نعرے رسالت، ذکر مصطفیٰ، علماء اہل سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنایا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن ہماری زبان سے سبحان اللہ بہت دورہ نکلتا ہے. جبکہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری عملی زندگی کا طرز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ محبوب ہم نے آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ حیات دی. آپ کی طرز عمل پر لوگ زندگی جئیں گے. جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو بشر کی ہے، لوگ اسی انداز میں بشر کریں گے. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر 40 سال تک لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں میرا کلمہ پڑھو میں تمہارا نبی. 40 سال تک لوگوں کو طرز زندگی سکھایا. طرز زندگی جس دور میں انسان کی حق تو بہت دور کی بات ہے، بیٹا اپنے باپ کی ادب و احترام نہیں کرتا، باپ خود بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا. اس دور میں جیسے آپ اور ہم آج بھیڑ بکریاں بیچنے کے لیے منڈی جاتے ہیں یا منڈی لگاتے ہیں، اس طرح سے انسان کو بیچنے کے لیے منڈی لگاتا تھا. ایسے پرفتن دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی طرز دی لوگوں کو. لوگوں تم جو زندگی جیتے ہو یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ حیوان کی زندگی ہے، جانور کی زندگی ہے. کبھی انسان کسی انسان کو بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے. تم بھی انسان کے نطفے سے پیدا ہوئے، تمہارا باپ بھی کوئی انسان ہے، اس کا بھی باپ انسان ہے.
तुम भी एक कबीले से हो, वो भी किसी कबीले से ताल्लुक रखता है। तुम भी किसी गांव के रहने वाले हो या शहर के रहने वाले हो, वो भी किसी गांव या शहर या देहात का रहने वाला होगा। तुम इंसान होकर इंसान को कैसे बेच सकते हो? तुम बाप हो इस बच्ची की, इस बच्ची के बाप होकर तुम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कैसे कर सकते हो? खड्डा अपने हाथों से खोद कर कैसे गाड़ सकते हो? ये इंसानियत का काम नहीं है। तुम्हारा काम है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी नस्ल है, तुम उससे प्यार करो, शफकत करो। दास्तानें भरी पड़ी है कि लोगों ने किस तरह के अमल करो आप काम किए थे इस्लाम से पहले, तारीख इस्लाम से पहले, लेकिन नबी ने अपनी जिंदगी को तफ्तार करके बताया, लोगों देखो तुम जिस गुलाम को खरीद कर लाए हो, तुम्हारा गुलाम तुम्हारे लिए काम करता है। वो जब बीमार हो जाता है तो उसकी पुरशाने हाल मैं करता हूँ। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा मामा वो चचा नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। उस इंसानियत के नाते से मैं उसकी इताअतदारी कर रहा हूँ, उसकी बीमार की पुरशिश हाल कर रहा, पुरशिशाने हाल बन रहा हूँ। लेकिन तुम अपना बालिग होने के बाद तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तुम उससे काम करवाते हो, चाहे कितना मुश्किल तरीन काम हो। उस दौर के लोग अगर किसी गुलाम को बुखार आ जाता था, बुखार के हालत में भी चक्की पिसवाते थे, बुखार के हालत में भी उससे पानी भरवाते थे, बुखार के हालत में भी खेत में जोताई करवाते थे, बुखार की हालत में भी उससे बोझ पर उठवाते थे, मुश्किल तरीन से मुश्किल काम करवाते थे। लेकिन मोहसिन इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कलमा के लिए ऐलान नहीं किए हैं, अभी रिसालत का ऐलान नहीं किए हैं, कि अभी एक नहीं कहे लोगों से कि मैं तुम्हारा नबी हूँ। सिर्फ इंसानियत के नाते से एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोगों ने वो गठरी वाली वाकया सुना होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले हजार रहा है, इस तरह के मिसालें दे चुके हैं कि जब भी लोगों के दरमियान में कोई मुश्किल पेश आता, एक इंसान अपने गुलाम को इस कदर मार रहा था, इस कदर मार रहा था कि गुलाम तरीन चीखे मार रहा था, पूरी गलियों में उसी की आवाज आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते हैं और फरमाते हैं कि दरवाजा खोलो, तुम अपने गुलाम को क्यों मार रहे हो, सबब बताओ। वो मालिक कहता है कि नहीं, मैं इसको मार मार के जान से मार डालूंगा, इसकी दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा, ना सबब बताऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बार दरवाजा तो खोलो, उसकी सबब बताओ क्यों मार रहे हो। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, ये इंसान मेरा खाता पीता है लेकिन मेरे लिए काम नहीं करता है, ये झूठ बोलता है, अपनी तबीयत खराब होने की बहाना जो ही करता है, काम नहीं करता है, मैं इस वजह से इसको मारना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी गुलाम के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कैसा मालिक हो, अपने गुलाम के कहने पर तुम अगर भरोसा नहीं है, कम से कम इसके हाथ पे, जिस्म में हाथ लगा कर तो देखो कि बुखार है कि नहीं। ये जो बहाना कर रहा है वो बहाना किस तरह की कर रहा है। पेट दर्द का बहाना हो तो समझ में आता है कि पेट का दर्द देखना में नजर नहीं आता, अगर कहे सर दर्द हो रहा है तो समझ में आता है कि सर में दर्द हो, नजर नहीं आ रहा है। बुखार की ऐसी हरारत है, बुखार खुद बता देती है, आंखें बता देती है कि हालत बुखार में है, बदन बता देता है कि बुखार की हालत में है। तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने तरफ से इसके बदन पे हाथ तक नहीं लगा रहे हो और मारे जा रहे हो, ये इंसान चिल्लाए जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके एवज में मैं काम करूंगा। तुम्हारे क्या क्या काम है वो अल्लाह के नबी काम कर रहे हैं और उस गुलाम को आराम में बिछा कर रखे हैं, रजाई देकर रखे हैं, अपने घर से दूध गर्म करके लाकर, खजूर का नवासा बनाकर, खजूर का खीमा और हलवा बनाकर उस गुलाम को खिला रहे हैं। कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैंने इंसान बहुत देखे लेकिन आपके जैसा देखे नहीं, इसलिए कि वो देख भी कैसे सकता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पे किसी ने क्या ही खूब कहा है, वो तो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया है। ये लोगों अल्लाह के नबी ने तर्ज जिंदगी 40 साल पहले लोगों को देकर बताया, अब 40 साल के बाद में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नबी हूँ। अब उसका इनाम क्या मिला, लोग चलने के ढंग सीख गए, लोग बैठने का तरीका मालूम कर लिए कि अल्लाह के नबी का रफ्तार ये है, अल्लाह के नबी का गुफ्तार ये है, अल्लाह के नबी लोगों के साथ इस तरह से पेश आते हैं, अल्लाह के नबी का अखलाक ये है। नबी के अल्लाह के नबी बोलते हैं तो मर्दबारी से बोलते हैं, नरम जबान से बोलते हैं, सबको मिठास से बोलते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं, किसी से गुस्सा नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, लोगों के दरमियान 40 साल तक अपना अखलाक
पेश करते रहे। अब जब से ही अल्लाह के नबी ने कहा लोगों मैं तुम्हारा आखिरी नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो और अल्लाह को एक मान लो, जैसे ही लोगों ने अल्लाह को एक माना और नबी का कलमा पढ़ा, उस दिन के बाद में अब वही अमल जो पहले कर रहा था कुछ नहीं था, कलमा पढ़ने के बाद अगर चलता है नबी की तरह, नामाए आमाल में सुन्नत का सवाब लिखा जा रहा है, बैठ रहा है नबी की तरह तो उसके नामाए आमाल में लेके लिखा जा रहा है, पी रहा है सुन्नत के मुताबिक, पानी पी रहा है, जिस्म के खुदा को, जिस्म की गज़ा को पूरी कर रहा है, अपने जिस्म की प्यास को बुझा रहा है, लेकिन नामाए आमाल में नेकी लिख रहा है, बिस्तर में सो रहा है, अपने जिस्म को आराम दे रहा है, लेकिन तरीक़े मुस्तफा से सो रहा है, तो उसके सोने की वजह से नामाए आमाल में नेकी लिखता जा रहा है। यही सबब है कि हम और आप कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम कलमा गो हुए और हमारे नामाए आमाल में नबी की एक सुन्नत को अदा करने की वजह से नेकी पे नेकी जुड़ी जा रही है। हम अमल कुछ नहीं कर रहे हैं, चलते और हैं और चलते हम भी हैं, खाते और भी हैं, खाते हम भी हैं, पीते और भी हैं, पीते हम भी हैं, और भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, और भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। अगर हम किसी से मुस्कुरा कर बोलते हैं तो हमारा मुस्कुरा कर बोलना नबी की सुन्नत है। इस सुन्नत को अमल करने की वजह से हमारे नामाए आमाल में नेकी लिखा जाता है। वो कलमा न पढ़ा, इस वजह से उसके नामाए आमाल में नेकी नहीं, और उसके नेकी न होने की वजह से जब वो मरेगा उसके लिए हशर अलग है, उसके लिए कब्र के सजा अलग है, हमारे लिए अलग है। हम कितने खुश नसीब हैं कि फकत एक कलमा की वजह से हमारे नामाए आमाल में नेकी ही नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हम और आप ये सारी तकरीरें सुनते आ रहे हैं, जब तक सुनते हैं तब तक दिल और दिमाग में यही बात रहती है कि अब सब पढ़ना, नमाज पढ़ना है। लेकिन वही कब्रिस्तान में जाते हैं तो वही याद आती है कि यार सब कुछ बेकार है, बस सब यही है, यही आना है। कैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं फिर वही है, वही जिंदगी, सब भूल जाते हैं। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हज़रात, अल्लाह तबारका व तआला से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और चंद दिन के बाद में ही, एक हफ्ता भी नहीं है मुश्किल से, रमजान मुबारक की बहारें बरकतें आने वाली हैं। ऐसी तौबा करके उठे इस मजलिस से कि मरहूम के लिए ईसाले सवाब भी हो और हमारे लिए नजात का जरिया भी। सुभान अल्लाह। और ऐसी नजात, इससे किसी को छुटकारा नहीं है कि मेरे दादा या बाप पहले चले गए हैं और हम बाद में जाएंगे तो वो लोग हमारा हिसाब किताब कर लिए होंगे। नहीं, हर इंसान को अपना अपना हिसाब करना है। जो तौबा करे तौबतुन नसूहा, जिस अमल से तौबा करे उस अमल को दोबारा जब तक जिए न करें, तो यह है तौबतुन नसूहा। और ऐसे ताइब को अल्लाह तबारका व तआला माफ फरमाता है और फिर उसको ऐसे माफ फरमाता है जैसे कि वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको एहदिन सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न रखे और फिर नूर अफरोज और ईमान अफरोज तकरीर हमारे मुक़र्रिर हाफिज व कारी मौलाना जनाब शोएब अख्तर साहिब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली वल बारी से समाअत करें और अपने ईमान को ताज़ा फरमाएं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।